Hello everyone, welcome to this lecture series. Myself Ravikant Nirala. I'm going to discuss this subject programming for problem solving. Subject code is KCS 101. In this lecture series, there are 10 lectures in which we will cover all important topic for the exam purpose. हम लोग 10 लेक्चर्स में ही सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। एग्जाम के लिए सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो लोग सीरियसली लेक्चर सीरीज को समझेंगे, कवर करेंगे, 100% अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। नाउ अब हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ I'm going to start first lecture of Unit 1, Fundamentals of Programming. In this lecture, we will discuss the overview of computer programming. First of all, tell me what is the programming language, why it's required. Basically, हम सब जानते हैं कि whenever two people wanted to communicate with each other, they must be knowing a common language. Without knowing a common language, we cannot communicate with each others, even a single talk. तो हमें आपस में बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह किसी भी मशीन को दूसरे मशीन से और यूजर ह्यूमन बीइंग को किसी मशीन से बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। दैट कॉमन लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इनपुट सेट ऑफ इनपुट्स डेटा होते हैं। वो इनपुट डेटा प्रोसेस होते हैं थ्रू द प्रोसेसिंग यूनिट एंड दैट कन्वर्टेड दैट इनपुट इनटू आउटपुट। दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। और इसी फंडामेंटल्स के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट है। दैट मस्ट बी रीडेबिलिटी, दैट मीन्स दैट लैंग्वेज मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज राइटेबिलिटी, दैट मीन्स इट मस्ट बी इजी टू राइट। Next one is verifiability, that means it must be ability to prove correctness of the program. Next one is easy of translation, that must be converted into executable form. That means it must be easy to translate into executable form. Next one is lack of ability, that means a program should provide unique meaning for every construct, right? Next topic is what are the application of computer. So these are the application of computer. We can say that we can use the computers as application in the business of and banking, insurance and healthcare, education and engineering design. नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एंड लास्ट वन इज मिलिट्री। तो इन सारे चीज़ों में हम लोग कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। देन आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, देन यू कैन से दैट। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एज वी नो दैट वी आर currently in the fifth generation of the computer. We are using the fifth generation of the computer. It was started with the first generation in 1946 to 1959. After that it was second generation. In the first generation it was used as a vacuum tube based computer. In the second generation it was transistor based, while in the third generation it was started from 1965 and end into the 1971. It was based on the integrated circuit. Fourth generation of computer was started in 1971 till 1980 and it was based on VLSI microprocessor. And last generation, that was the fifth generation of computer, was started in 1980s
and it was based on the ULSI microprocessor. So now this is the very important topic. What are the generation of computers? ये बहुत बार ऐसा देखा गया है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि राइट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. Now the next topic is types of the computer. Basically our computer system is classified into various different kinds of computer. Now first computer was PC computer. We can say that that is the personal computer. It was single user computer system. Whenever it was started, it was completely single user computer system. After that, the next type of computer was workstation. It is also a single user computer system. Similar to personal computer, has more powerful microprocessor. That means ये दोनों पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन के अंदर जो सिमिलैरिटी थी, बोथ वाज द सिंगल यूजर, बट द थिंग इज इन द वर्क स्टेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज पावरफुल कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर. नेक्स्ट कंप्यूटर type of computer was mini computer. It is multi-user computer system. That means we can say that multi-user computer system started in mini computer, and it is capable to supporting hundreds of users simultaneously. That means एक साथ उस कंप्यूटर्स एप्लीकेशन को, उस कंप्यूटर सिस्टम्स के रिसोर्सेज को 100 पीपल्स एक बार में यूज कर सकते थे. Next type of computer is mainframe. It is also a multi-user computer system. इसका मतलब ये हुआ कि अब जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स आ रहे हैं सारे के सारे मल्टी यूजर्स आएंगे. Now it is a multi-user computer system capable of supporting hundreds of users simultaneously. That means यहाँ तक तो दोनों में सिमिलैरिटी थी. लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम द मिनी कंप्यूटर. तो हम सब जानते हैं कि आर कंप्यूटर सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो जो हम मेन फ्रेम के अंदर जो देख रहे थे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट हो गया था, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट वाज द सेम. मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि मल्टी यूजर्स को सपोर्ट करना एंड साइमल्टेनियसली थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस को एक बार में सपोर्ट करता है, राइट. और थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को एक बार में ये सपोर्ट करना. तो ये हमारे दोनों कंप्यूटर सिस्टम्स का बेसिकली एडवांटेज थे. नाउ लास्ट वन इज सुपर कंप्यूटर. दिस इज वेरी रिसेंट कंप्यूटर सिस्टम. इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मल्टी यूजर्स तो हैं ही, साथ में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक बार में एग्जीक्यूट हो सकते हैं. ये बहुत ही फास्ट होते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं. दे कैन एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड. तो ये सोचो, इसलिए इसका नाम रखा गया है सुपर कंप्यूटर. नाउ वी कैन से दैट द होल कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 5 different types. First one is personal computer, second one is workstation, third one is mini computer, and fourth one is mainframes, and last one is supercomputer. So personal computer and workstation both are single user computer system, while our last 3 computers types of computers are multi users computer system, right. तो ये था हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इट इज दिस इज द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस सब्जेक्ट. Next topic is computer component. It is very important topic. Now I'm going to cover this one. Now whole computer system is divided into small components. Now that set of component is called block diagram of computer. In this block diagram of computer, we can say that the first component is input unit, second component is CPU, and third component is output unit. The first component, input unit, having responsibility to take input streams from the input devices and gives or process to the central processing unit. We can say that to the CPU. यानी इनपुट स्ट्रीम से इनपुट डेटा को इनपुट लेना इनपुट डिवाइस के साथ और उसे CPU को प्रोसेस करा देना. दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनपुट यूनिट. देन नेक्स्ट, तो वी कैन से दैट देयर आर वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड.
नाउ तो कीबोर्ड क्या करता है कि इनपुट स्ट्रीम इनपुट डेटा को लेता है और वो सीपीयू को दे देगा. नाउ सीपीयू हैविंग वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Now in this CPU we can say that there are three different kinds of components within this CPU. First component is arithmetic and logical unit. Arithmetic and logical unit having responsibility to perform all arithmetic and logical operation over there. As we know that different kinds of arithmetic and logical operations are there, like addition, subtraction, multiplication, division, modulus operator. These kind of operations is called arithmetic operations. Why it is called arithmetic operator? So operation, because they perform arithmetic operation by using arithmetic operator. तो हम सब जानते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस, these are the arithmetic operator. Using this arithmetic operator we can perform arithmetic operation. Similarly, there are various logical operator. They are using that logical operator CPU can perform logical operation like logical and logical or operation. तो इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में. तो बेसिकली इन दिस लेक्चर यूनिट, in this first lecture we are covering the basic features of the computer, right? So in this computer components, the first component is input unit and second component is CPU unit. In this CPU unit there are three different kinds of component. First one is arithmetic and logical operation. Second one is control unit. Control unit is a very important component of CPU. There are various responsibility to perform. First one is it's having responsibility to take inputs from the input unit. Input unit से input लेता है. Second responsibility is to perform all arithmetic and logical operation. That means without control unit, CPU cannot be decide which operations to be performed. Then second responsibility of control unit is to decide which operations should be performed by the CPU. If it required arithmetic operation, that means that operation must be provided by the arithmetic and logical operation. That means control unit क्या करेगा, उस input set को ALU के पास भेज देगा. Third important operations performed by the control unit. Control unit also decide where to store the data. That means data को कहाँ store करना है and from where to fetch the data. Data को कहाँ से निकालना है, it is also decided by the control unit. And last operation performed by the control unit is that it also decide where to perform the output data. That means through the control unit, output is also performed on the output device like monitor and printer. So we can say that basically there are four operations performed by the control unit. First one is to take input from the input device. Second one is it also decide which operations to be performed by the CPU, either arithmetic or logical operation. And third operation performed by the control unit is it also decide where to store the data and from where to fetch the data. And last operation performed, we can say that fourth operation performed by the control unit is where to produce the output. That means which आउटपुट डिवाइस दे विल जनरेट द आउटपुट. तो ये हमारा चार ऑपरेशंस कंट्रोल यूनिट के थ्रू परफॉर्म होते हैं. नेक्स्ट लास्ट कंपोनेंट इज मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के बाद. एंड लास्ट कंपोनेंट इज आउटपुट यूनिट. तो आउटपुट यूनिट का काम क्या है, टू जनरेट टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन दी आउटपुट डिवाइस. तो जो हमने अभी पढ़ा इनपुट यूनिट्स के बारे में, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है. नेक्स्ट वन इज
आउटपुट यूनिट्स के बारे में जो मैंने बोला एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था सीपीयू। सीपीयू के अंदर 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। दैट मीन्स अब सीपीयू क्या होता है ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ब्रेन होता है, उसी तरह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सीपीयू। दैट मीन्स वी कैन से दैट द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU perform all type of data processing operations. That means इनपुट लेना, इनपुट ले करके उसको इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म करना एंड आउटपुट देना। दैट मीन्स ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड बाय द CPU. It stores the data, intermediate results and instructions program. ये सारे ऑपरेशंस किसके थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं? सीपीयू के थ्रू। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो एएलयू में हमने पढ़ रखा था कि 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक सेक्शन में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया, एंड लॉजिकल सेक्शन में लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं जो हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में मैंने बोला कि देयर आर 4 डिफरेंट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। तो वो हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया था, उन्हीं सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इज द कंप्यूटर मेमोरी, राइट। तो इस मेमोरी यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो इसे बहुत अच्छे से समझना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस यूनिट। नाउ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। दैट मीन्स कि जहाँ पर भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है वो हमारा स्टोरेज स्पेस मेमोरी यूनिट में आता है। नाउ वेयर टू स्टोर द डेटा एंड फ्रॉम वेयर टू फेच द डेटा, बेसिकली दिस 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन द मेमोरी। कहाँ पर डेटा को स्टोर करना है और कहाँ से डेटा को फेच करना है। दिस टाइप ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू बी परफॉर्म्ड इन द मेमोरी यूनिट। नाउ मेमोरी यूनिट्स को हमने 3 डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया गया, राइट। फर्स्ट वन इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल मेमोरी होता है वो हमारा कैश मेमोरी होता है। नाउ अब हम लोग आ रहे हैं कि इन तीनों मेमोरी का स्ट्रक्चर मीन्स कहाँ पर वो प्लेस होते हैं, एक्चुअल सेगमेंट्स को हम लोग देख रहे हैं। नाउ दिस इज द सीपीयू एंड दीज आर द all memory units. The nearest memory unit of the CPU that is called cache memory. Cache memory is also called internal memory of the CPU. Now cache memory is very high, having very high speed. Semiconductor memory which can speed up this CPU. CPU को का स्पीड परफॉर्म करता है। दैट मीन्स किसी भी सीपीयू का स्पीड अप के लिए हमें कैश मेमोरी, इंटरनल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर वेरियस एडवांटेजेज ऑफ द कैश मेमोरी। फर्स्ट वन इज कैश मेमोरी इज फास्टर देन अदर मेमोरी, यानी जितने भी अदर मेमोरी हैं इन दोनों मेमोरी से कैश मेमोरी फास्टर होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे स्पीड घटेगा एंड साइज बढ़ेगा, यानी कि साइज एंड स्पीड। दिस इज दी, देखो यहाँ पर देख रहे हो ये हमारा आ गया स्पीड और दिस इज साइज। तो हम देख रहे हैं कि अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट साइज ऑफ द कैश मेमोरी इज वेरी स्मॉल कंपेयर देन अदर मेमोरी एंड स्पीड ऑफ कैश मेमोरी इज वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर मेमोरी। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं स्पीड घट रहा है और साइज बढ़ रहा है। दैट मीन्स द वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्पीड एंड साइज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो यहाँ पर जो एडवांटेज कैश मेमोरी का निकल के आ रहा है, कैश मेमोरी इज फास्टर देन अदर मेमोरी यूनिट्स, इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम। जब फास्टर होगा तो एक्सेस टाइम क्या होगा, लेस होगा,
It stores the program that can be executed within a short period of time. यानी कि ऐसे प्रोग्राम को स्टोर करता है जो कम समय में एग्जीक्यूट हो जाता है. दैट मीन्स दैट प्रोग्राम मस्ट हैव एग्जीक्यूटेड, दैट एग्जीक्यूशन टाइम मस्ट बी लिटिल बिट, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही कम होगा, सिर्फ उसी प्रोग्राम को ये स्टोर करता है. एंड स्टोर्स द डेटा temporary. Why it stores the data temporary? Reason is that size of the cache memory is very small. और जब साइज बहुत छोटा होगा it cannot the hold the data permanently. तो फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आया कि साइज ऑफ द कैश मेमोरी इज वेरी स्मॉल. Speed of cache memory is very fast. It can hold the data temporary and it stores the data. ऐसे डेटा को स्टोर करेगा जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है एंड जिसकी एक्सेस फ्रीक्वेंसी हाई होती है. तो ऐसा डेटा जिसकी एक्सेस फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसको होल्ड करेगा, या जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम लगता है वो ऐसे डेटा को ये होल्ड करता है. Next one is main memory. Main memory is a very important component of memory unit. Now हम यहाँ आ रहे हैं. Basically main memory is also called primary memory. Primary memory holds those data and instruction on which the computer is currently working. ऐसे इंस्ट्रक्शन को और डेटा को होल्ड कर रहा है जो कि जिस पर कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा है. These memories are not as fast as रजिस्टर और कैश मेमोरी, यानी कि रजिस्टर और कैश मेमोरी की तरह ये फास्टर नहीं होता है. बेसिकली इट डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम. अब रैम की बात कर रहे हैं तो रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एज द नेम सजेस्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट मीन्स वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम. उस रैम से हम डेटा को कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी. नेक्स्ट वन इज रोम. तो रैम एंड रोम का डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे. तो रैम एंड रोम का डिफरेंस पढ़ने से पहले हम लोग आते हैं कि रैम को कितने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. तो बेसिकली देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रैम. फर्स्ट वन इज स्टैटिक रैम एंड सेकंड वन इज डायनेमिक रैम. याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रैम रोम दैट मीन्स मेमोरी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको हम लोग एक बार रिवाइज भी करेंगे तो इन सब चीज़ों को पहले हम लोग अच्छे से समझ भी लेते हैं. नाउ यहाँ देख रहे हैं एस रैम एंड डी रैम क्या है. एस रैम इज मेड अप बाय द ट्रांजिस्टर वाइल डी रैम इज मेड अप बाय द कैपेसिटर. तो एक ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, दूसरा कैपेसिटर से बना हुआ है. एग्जाम में आएगा तो आप फोर डिफरेंस लिख देना, इनफ है. तो पहला डिफरेंस क्या है, एस रैम ट्रांजिस्टर से बना हुआ है और डी रैम कैपेसिटर से बना हुआ है. नाउ इन द एस रैम इट डजंट नीड पीरियोडिक रिफ्रेशिंग टू प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन. यानी कि डेटा को प्रिजर्व रखने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जबकि डायनेमिक रैम में इट रिक्वायर्ड पीरियोडिकली रिफ्रेशिंग. दैट मीन्स इसे बार बार रिफ्रेश करने के लिए सर्टेन इंटरवल में रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है. नाउ थर्ड पॉइंट इज एस रैम इज फास्टर कंपेयर देन डी रैम. तो सिंपल सी बात है, डी रैम क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा. नाउ एस रैम मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम, यानी कि इसका जो कॉस्ट होता है एस रैम का वो ज़्यादा होता है कंपेयर देन डी रैम. तो दीज आर द फोर डिफरेंस बिटवीन द एस रैम एंड डी रैम. पहला क्या था, एस रैम ट्रांजिस्टर से बना हुआ है जबकि डी रैम कैपेसिटर से बना हुआ है. एस रैम को पीरियोडिकली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डेटा को प्रिजर्व करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए. जबकि डी रैम के अंदर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए पीरियोडिकली रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है. एस रैम फास्टर होता है एंड लेस एक्सपेंसिव होता है, हाईली एक्सपेंसिव होता है, जबकि डी रैम स्लोअर होता है और चीपर कंपेयर देन एस रैम होता है. तो ये फोर डिफरेंसेस थे जो हमें समझना पड़ेगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं रोम के अंदर. उसके बाद रैम एंड रोम को एक बार में डिफरेंस के साथ समझ लेंगे.
तो रोम स्टैंड्स फॉर द रीड ओनली मेमोरी, दैट मीन्स इस मेमोरी के अंदर सिर्फ हम डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो दिस मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल नेचर को हम लोग समझेंगे जब डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि एक तो हमारा जो रैम होता है वो राइटेबल मेमोरी है, रीराइटेबल मेमोरी है, जबकि रोम है सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, राइट। अब हम लोग रोम के अंदर जब आ रहे हैं तो रोम को हम लोग डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली रोम को भी फोर डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एम रोम, सेकंड है पी रोम, थर्ड है ई पी रोम एंड फोर्थ है ई पी रोम। तो ये हम यहाँ आते हैं मास्केबल रोम, एम रोम के पर आ रहे हैं। मास्केबल रोम, द वेरी फर्स्ट रोम्स वेयर hardwired device that contain a pre-programmed set of data और इंस्ट्रक्शन, यानी मास्केबल रोम के अंदर प्री प्रोग्राम्ड डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं, ठीक है। अगर प्री प्रोग्राम्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन किसी मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर्ड है तो उसको बोलते हैं मास्केबल रोम। दैट मीन्स इन दिस मास्क्ड रोम it contains pre-programmed set of data and instruction। फिर है the kind of ROMs are known as masked ROM। इस टाइप के ROMs को जहाँ पर पहले से प्री प्रोग्राम डेटा एंड इंस्ट्रक्शन होते हैं उससे हम लोग मास्क्ड ROM बोलते हैं। और ये होता है, ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव होते हैं, तो ये इनएक्सपेंसिव है। नाउ ROM, अदर थ्री काइंड्स ऑफ ROMs आर PROM, EPROM एंड EEPROM। अब हम तीनों का डिफरेंस समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का डिफरेंसेस हम लोगों ने यहाँ पर समझा। फर्स्ट है ना प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम क्या है? सिंपल सी बात है, रोम है तो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी तो है ही, तो प्रोग्रामेबल रोम भी है, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट वन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जिसको हम लोग डिलीट भी, इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट वन वाज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम के अंदर पढ़ते हैं, इट कैन बी मॉडिफाई ओनली वंस बाय द यूजर। एक बार में सिर्फ एक यूजर के थ्रू एक ही बार इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज्ड। उसको इरेज कर सकते हैं और फिर से उसको हम रीयूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, इसके अंदर हम आ रहे हैं, तो इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड रिपीटेडली। इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार ऐसा कर सकते हैं, नॉर्मल थ्रू द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, यानी कि सेम पर्पस है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम की तरह फीचर्स है, इसके अंदर हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के थ्रू हम लोग इसे इरेज करके और बार बार यूज कर सकते हैं। तो तीनों में पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। पहला क्या था कि पी रोम क्या था कि सिर्फ एक बार यूजर के थ्रू मॉडिफाई हो सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम के अंदर हम लोग इसको इरेज करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। और थर्ड क्या है कि नॉर्मल वोल्टेज के साथ, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के साथ इसे बार बार हम लोग इरेज करके रीयूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड तो नेम के थ्रू डिफ्रेंशिएट किया गया, तो दैट इज ऑलरेडी क्लियर। थर्ड वन इज इट वॉज programmable ROM was developed by Wen T-Sing Chow in 1956, while erasable PROM developed by Dov Froman in 1971, and last one electrically erasable programmable ROM was developed in 1978। तो एक 1956 में डेवलप किया गया था, दूसरा 1971 में, एंड लास्ट वन जो था 1978 में डेवलप किया गया। फिर है लास्ट डिफरेंसेज आर, फर्स्ट इन द
PROM, it was reprogrammable only once, एक बार ही हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो होता है कैन बी रीप्रोग्राम्ड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ हम लोग इसको रीप्रोग्राम करते थे। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम के अंदर हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं थ्रू द इलेक्ट्रिकल चार्जेज और वोल्टेज। हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसे भी हम लोग इलेक्ट्रिकल वोल्टेज यूज करके इसे करते हैं। दैट मीन्स तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द PROM, EPROM एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो यहाँ तक सबका क्लियर है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम लोग एग्जाम के लिए इसको अच्छे से कवर करेंगे। लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज in this memory unit, that is RAM versus ROM. It is very important for the examination purpose. आप लोग इसे फिट कर ले कि कहीं से भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे आप लोग अच्छे से लिखोगे। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द RAM एंड ROM, इसे हम लोग समझेंगे। नाउ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM इज सिंपली रीड ओनली मेमोरी। First point is it is volatile in nature. What is the meaning of volatile in nature? Volatile in nature means data can be erased or deleted whenever power is off. That is called volatile in nature. तो जब भी पावर ऑफ होगा तो डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं volatile in nature। जबकि दिस ROM इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते हो, जब तक सिस्टम शट डाउन नहीं करते हो, तब तक ये डेटा उसके अंदर रहेगा। इन द RAM इट इज रीड राइट मेमोरी, दैट मीन्स वी कैन रीड एज वेल एज राइट इन दिस RAM, while ROM is only read only memory. Third difference between the RAM and ROM is it loses the data stored in it when the power is turned off. जैसे पावर टर्न ऑफ हो जाएगा तो ये अपने आप डेटा इरेज हो जाएगा। While in the ROM the data inside it retain if the power of the CPU is switched off. तब तक भी डेटा इसके अंदर रहेगा जब तक ये पावर स्विच ऑफ होगा, राइट। तो डेटा इनसाइड इट रिटेन्स इवन इफ द पावर ऑफ CPU is switched off. तो we can say that in the RAM it is a temporary storage while ROM is permanent storage. Now RAM is costlier than ROM while ROM is cheaper than RAM. RAM can holds a large amount of data as compared to ROM. ROM के कंपेयर में लार्ज साइड ऑफ डेटा को ये स्टोर कर सकता है, जबकि ROM कैन होल्ड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। RAM is faster compared than ROM while ROM is slower compared than RAM. The data in RAM can be modified easily because why? Because this is read and write memory. तो जहाँ पर भी read and write दोनों पॉसिबल होगा तो सिंपल सी बात है उसके डेटा को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि मॉडिफिकेशन नॉट पॉसिबल इन दी ROM बिकॉज यहाँ पर हम राइट कर ही नहीं सकते हैं, राइटेबिलिटी ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं ROM के अंदर, तो कभी भी मॉडिफाई भी नहीं किया सकता है। लास्ट डिफरेंस बिटवीन द RAM एंड ROM इज इट इज यूज्ड इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। नॉर्मल ऑपरेशन में इसको यूज करते हैं, वाइल ROM को हम लोग यूज करते हैं जब स्टार्टअप प्रोसेस, जब सिस्टम को आप रिबूट करते हो, जब रिस्टार्ट करते हो, तब वहाँ पर ROM की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हो गया। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द RAM एंड ROM इज first one is in the RAM we can perform read as well as write operation, while in the ROM we can perform only read operation. RAM is volatile in nature, that means data must be deleted or lost even whenever power is off, while in the ROM it cannot be deleted. Third difference is RAM is temporary storage while ROM is permanent storage. And fourth difference is
It can, in the RAM, it can hold large size of the data, while ROM can hold only small amount of data. While in the RAM is the faster compared than ROM. And last difference is very important difference is RAM. A computer system can use the RAM in the normal operation of computer, while in the ROM it can use whenever system is going to start और रिबूट, जब भी सिस्टम स्टार्ट और रिबूट होता है तो वहाँ पर रोम का यूज कर रहे हैं. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द रैम एंड रोम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ नेक्स्ट लास्ट कम टू द secondary memory. Secondary memory is the permanent type of memory. It can hold the large size of data, generally in the GB and TB. लाइक आपने सुना होगा कंप्यूटर के अंदर 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, 500 GB का हार्ड डिस्क है, 250 GB का हार्ड डिस्क है. तो ये जो हमारे जो आपने सुना है एग्जैक्टली सेकेंडरी मेमोरी है. और सेकेंडरी मेमोरी का जो एग्जांपल्स है लाइक डिस्क, आपने पढ़ा हो CD, DVD, डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी है. पेन ड्राइव. तो सेकेंडरी मेमोरी की जो साइज होती है बहुत ज़्यादा होती है. दैट मीन्स वी कैन होल्ड द डेटा इन लार्ज अमाउंट ऑफ, राइट. एंड नेक्स्ट हम आ रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी की जो प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं. दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज. इट इज़ नोन एज बैकअप मेमोरी, यानी इसको कभी भी हम लोग यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी तरीके से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. दिस इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, अपने आप इरेज नहीं होता है. डेटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ द पावर इज स्विच ऑफ. जैसे पावर स्विच ऑफ भी करोगे तभी डेटा रिटेन रहता है, स्टोर रहता है, इसलिए इसको हम लोग परमानेंट मेमोरी बोलते हैं. कंप्यूटर में रन विदाउट दिस सेकेंडरी मेमोरी, और बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी हम कंप्यूटर को रन कर सकते हैं. तो ये हमारे फीचर्स थे, सेकेंडरी मेमोरीज के फीचर्स थे. नाउ यहाँ तक हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल करके आया था वो था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. और उन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था रैम वर्सेस रोम, सेकंड है एस रैम वर्सेस डी रैम, एंड थर्ड है डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. तो ये 3 डिफरेंट टॉपिक हमने पढ़ लिया. So now I'm going to discuss the operating system. Operating system क्या है? The operating system is a program with the following features. याद रखना ये टॉपिक बहुत ही important है. An operating system is a program that acts as an interface between the software and computer hardware. सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. It manages over all resources and operations of the computer. यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, यूजर, इन सब को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. एज वेल एज जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उन सब को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. बेसिकली इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स. Basically, it is a system software that controls and monitors the execution of all other programs that resides in the computer, right? तो जितने भी इस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है उन सबको कंट्रोल करना इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो अभी तक हमने जो पढ़ा कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेज ऑल रिसोर्सेज लाइक सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज, यूजर्स, एज वेल एज इट मैनेजेज ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम. नाउ यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. वी कैन से दैट नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्लेस्ड हियर. ऑपरेटिंग सिस्टम resides over the hardware and between the application. That means operating system is between the hardware and application software, and we can say that it provides interface between the hardware and application software.
राइट। सो जब किसी मशीन के ऊपर अगर से ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया जाए तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि यूजर कैन इंटरेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द एप्लीकेशन ओनली। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट इंस्टॉल एप्लीकेशन ओवर देयर। और जब एप्लीकेशन ही नहीं रहेगा तो यूजर किसी भी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। दैट मीन्स कंप्यूटर का कुछ भी यूज नहीं होगा। तो वी कैन से दैट कि सारे एप्लीकेशंस की एक्सेसिबिलिटी हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा हार्डवेयर के ऊपर है। तो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड अब सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, राइट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स the memory management, means where to store the data and from where to fetch the data. Next one is process management. It allocates processor for the overall processes. That means what different kinds of processes to be performed or different kinds of process to be executed that will be managed by the operating system. नेक्स्ट वन इज डिवाइस मैनेजमेंट। जितने भी आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस लगा रहे हो उन सबको मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट। आपने देखा होगा फाइल का एलोकेशन एंड डी एलोकेशन इन द मेमोरी यूनिट। दैट मीन्स वी कैन से दैट रैम, रोम, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में जहाँ पर भी हम फाइल का एलोकेशन एंड डी एलोकेशन कर रहे हैं, रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को ले रहे हैं, रिसोर्सेज को हम रीयूज कर रहे हैं, इन सब का काम ये किसके थ्रू हो रहा है? फाइल मैनेजमेंट के थ्रू हो रहे हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। तो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो बेसिक सिक्योरिटी है दैट मीन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करना, दैट मीन्स यूजर के लिए पासवर्ड प्रोवाइड करना, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके थ्रू मिल रहा है? ये जितने भी सिक्योरिटी किसके थ्रू मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जॉब अकाउंटिंग। That means keep tracks of time and resources used by the various job and users. कौन सा यूजर किस टाइम में आया था, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, कौन सा रिसोर्सेज यूज किया है, ये सारे जॉब अकाउंटिंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है? कौन परफॉर्म करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के रखे हुए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट वन इज एरर डिटेक्शन। दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स। सो through the operating system, error detection operation to be handled by the operating system also, like error message provide करना, error detect करना, debugging करना, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट बिटवीन दी अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर्स। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल एज यूजर्स। तो उनके बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करना, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, वो कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू मिल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो वी कैन से दैट दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको क्लियर होना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट, दैट मीन्स वेयर टू स्टोर द डेटा एंड फ्रॉम वेयर टू फेच द डेटा। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस मेमोरी, प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? विच ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू, किस तरीके का ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, कहाँ से परफॉर्म हो रहे हैं, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कराना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट वन इज डिवाइस मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि कौन कौन से डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कौन सा प्रोसेस के लिए कौन सा रिसोर्सेस लगेगा, वो सारे डिवाइस का एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, सारे के सारे वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग के अंदर हमने देखा कि ट्रैक ऑफ रिसोर्सेज, कब रिसोर्सेस यूज हो रहा है, किस टाइम पर यूज हो रहा है, यूजर ने कब लॉगिन किया था, ये सारे जॉब अकाउंटिंग जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं। एरर डिटेक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। मैसेज देना, एरर का मैसेज देना, डिबगिंग करना, एरर को डिटेक्ट करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूजर। हम सब जानते हैं कि यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर विद द सॉफ्टवेयर ओनली, और सॉफ्टवेयर के साथ यूजर का जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये कोऑर्डिनेशन देने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
बेसिकली दीज आर द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे बहुत सारे होते हैं लेकिन हम सब 5 ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सब जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो उसमें अगर सिमिलर टाइप वाले वर्क को अगर एक बैच में क्लब कर दें तो उसे हम लोग बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस द जॉब्स विथ सिमिलर नीड्स वेयर बैच्ड अप एंड एग्जीक्यूटेड टुगेदर। जो सिमिलर जो जॉब्स हैं ना उसको एक बैच में क्लब कर देते हैं और उसको एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देन द रिजल्ट ऑफ दी जॉब्स वेर सेंट बैक टू रेस्पेक्टिव प्रोग्रामर, यानी जो उसका रिजल्ट जो होगा वो प्रोग्रामर को भेज दिया जाता है। दैट मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ जॉब इज क्लब टुगेदर एंड दैट विल एग्जीक्यूटेड correspondingly and the result is sent back to the programmer। ये हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट वन इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू शेयर दिस सिस्टम साइमल्टेनियसली, यानी मल्टीपल यूजर्स उस सिस्टम को एक साथ शेयर कर रहे हैं। ईच यूजर इज प्रोवाइडेड अ टाइम स्लाइस एंड द प्रोसेसर switches rapidly among the users according to it। That means कि जितने भी यूजर्स हैं एक टाइम स्लॉट शेयर करते हैं और कंप्यूटर जो प्रोसेसर है उस टाइम स्लॉट्स को यूजर के अकॉर्डिंगली फिर स्विच करते रहते हैं, राइट। यानी कि हर एक यूजर्स के लिए एक टाइम स्लॉट डिसाइड किया जाएगा और उस टाइम स्लॉट के अंदर वो यूजर अपना वर्क परफॉर्म करेगा, उसके बाद नेक्स्ट यूजर को स्विच टाइम स्लॉट्स दूसरे टाइम स्लॉट्स नेक्स्ट यूजर को दे दिया जाएगा। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। These operating system have multiple processes working together। That means multiple processors एक बार में वर्क करते हैं, ठीक है, पैरेलली वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि the multiple processors are working together at the same time। तो ये कहलाए मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। दिस प्रोसेसर शेयर द सेम रिसोर्सेज, सिस्टम रिसोर्सेज। जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं वो सिस्टम रिसोर्सेज को वो लोग शेयर करते हैं, सच एज बस, क्लॉक एंड मेमोरी। तो ये सारे सिस्टम रिसोर्सेज हैं, बस, क्लॉक, मेमोरी, दीज आर द सिस्टम रिसोर्सेज एंड दीज सिस्टम रिसोर्सेज इज शेयर्ड बाय द मल्टीपल प्रोसेसर्स पैरेलली, राइट। Next type of operating system is distributed operating system। This system manages a set of different computers that are spread across a network। जितने भी नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उन सब को मैनेज करना डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सो द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेटिंग एफिशिएंटली। दैट मीन्स वो एक सपोज करो हमारे पास एक लार्ज नेटवर्क है, उस लार्ज नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देयर और वो लोग क्या कर रहे हैं कि रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली शेयर कर रहे हैं। तो डिफरेंट कंप्यूटर्स के थ्रू एक ही नेटवर्क के अंदर अगर मल्टीपल रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशंस को एफिशिएंटली इस्टेब्लिश कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। तो इस तरीके का जो फीचर्स को जो लाया गया है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। लास्ट type of operating system is real time operating system। There are strict time specification in real time operating system। यानी कि यहाँ पर each and every task having own deadline। हर एक टास्क का अपना डेडलाइन होता है। दैट मीन्स दैट टास्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विद इन दी डेडलाइन। तो हम वो जो डेडलाइन होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम स्पेसिफिकेशन के साथ होता है। सो दे आर यूज्ड इन साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, बैंक्स, रोबोटिक्स where time bonds are important। Let us example, अगर हम ATM मशीन की बात करते हैं then transaction process is having the a time bond।
अगर वो 40 सेकंड 45 सेकंड के अंदर ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो, अदरवाइज फिर वो टाइम आउट हो जाएगा। अगर स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड वहाँ पर नहीं होगा, टाइम बाउंड नहीं होगा, तो क्या होगा कि सपोज करो पैसे नहीं निकले और आप वहाँ से निकल जाते हो, तो बाद में वो पैसे कभी निकल सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कहाँ पर यूज हो रहा है? साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के अंदर, बैंक्स के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि इफ टू पीपल आर कम्युनिकेटिंग टुगेदर एंड both people are familiar with the different language. That means if they want to communicate with each others, first people will say in own language and second people can understand in own language only. That means the sender language must be translated in the target language. So whenever language is converted into target language, that is called translation process. So basically translator is a kind of program that translates a source language into target language. Now this is the translation process. This is also very important topic. The next topic is language processing system. It's a very important topic. आप लोग बहुत ध्यान से समझ लो। नाउ हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को एक डायग्राम से समझते हैं। So basically in the language processing system there are various passes associated over there. Now first passes is preprocessor. Preprocessor having responsibility to pre-process the source code which is written by the user. यूजर ने सोर्स कोड लिखा और उसको प्री प्रोसेस किया गया। प्री प्रोसेस करने के बाद उसे कंपाइलर के पास भेज दिया गया। नाउ प्री प्रोसेसर हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्री प्रोसेस द सोर्स कोड विच इज रिटन बाय द यूजर एंड सेंड इट ओवर द कंपाइलर. Now compiler is the second process of this language processing system. Compiler having responsibility to compile that source code. So compiler having responsibility to take input as pre-processed code and converted it into assembly code. Right? Now the next pass of this compilation process is assembler. Assembler having responsibility to take input as assembly code and converted it into object code file. Now next passes of the compiler is linker. Linker having responsibility to take that object code and combine together and converted it into single executable file. That means this linker having responsibility to collect all object file which is generated by the assembler and converted it into single executable file. Then last passes of this compilation process is loader. Loader having responsibility to store that executable file into memory and make it ready for execution. Now these are the different passes of this compilation process. First passes was preprocessor having responsibility to pre-process the source code which is written by the user. That pre-processed code will be input for the compiler and compiler having responsibility to take that pre-processed code and converted it into assembly code. Assembler having responsibility to take that assembly code and converted it into object code. Linker having responsibility to collect all object code and converted it into single executable file. And last passes of the compilation process is loader. Loader having responsibility to store that executable code into memory and make it ready for
execution. So this topic is very very important for the examination purpose. So let us review overall topics covered in this lecture. First topic is fundamental of computer. Second is programming, basic criteria of programming language. After that, the important topic is generation of computers. There are 5 generation of computer. Next topic, important topic is types of computer. There are 5 different type of computers. We have already discussed. Next important topic is very important topic is block diagram of कंप्यूटर. तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ लेना है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. तो यहाँ से क्या हो रहा है कि किस पूरे कंप्यूटर को 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है. इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट. इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट बहुत ही सिंपल था. नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ सीपीयू. कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के अंदर हम सब ने पढ़ा कौन कौन सा है. फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सेकंड वन इज कंट्रोल यूनिट, थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट. तो ये सीपीयू यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पर जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो निकल कर आता है वो होता है मेमोरी यूनिट्स के अंदर. मेमोरी यूनिट्स के अंदर सबको अलग अलग डिफाइन करने के लिए पूछेगा, अलग अलग एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है. उसके बाद इन सब के बीच में जो हायरार्की स्ट्रक्चर बना हुआ है इन सबको समझना पड़ेगा. और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के पॉइंट निकल कर आया था कि in this hierarchy structure whenever moving from in the memory unit, whenever moving from top to bottom, size is increasing and speed is decreasing. That means speed and size both are inversely proportional. ये हम सब ने डिस्कस कर लिया है. उसके बाद हम सब ने देखा कि रैम प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं, मेन मेमोरी के अंदर आते हैं. तो यहाँ पर रैम एंड रोम के बारे में पढ़ा था. तो रैम एंड रोम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, रैम वर्सेस रोम. फिर जब हम रैम के अंदर आते हैं तो एस रैम वर्सेस डी रैम पढ़ेंगे हम लोग. और जब रोम के अंदर आते हैं तो प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में जो डिफरेंसेस आएंगे इनको हम लोग पढ़ लेंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, यही पढ़ना है. तो फीचर्स एंड टाइप्स हम सब ने पढ़ लिया है. उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है. लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को समझने के लिए इन सब के बारे में डिफरेंट पासेस को समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों ज़रूरत पड़ी थी? बिकॉज हम सब जो यूजर होते हैं, यूजर सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं, जबकि मशीन हमेशा लो लेवल लैंग्वेज को समझता है. और वी कैन से दैट मशीन लैंग्वेज को समझता है. तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है टू इस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन. और इस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है. इसके लिए डिफरेंट पासेस पढ़ा हमने. और उस पासेस में प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर एंड लोडर को समझा है. तो यहाँ तक था, हम सब ने पढ़ लिया. थैंक यू टू ऑल.